آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں دو طرح کے فتنے ہیں. ایک فتنہ خارجی فتنہ ہے اور ایک داخلی فتنہ ہے. عالم اسلام 1400 سالوں سے ان دو فتنوں کا شکار ہے. خارجی فتنہ یہود و نصارہ دشمنان دین اعدائے دین کا فتنہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں بڑے پیمانے پر یہود و نصارہ برسر پیکار رہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتے رہے. وہی ایک داخلی فتنہ تھا جسے منافقین کا فتنہ کہا جاتا ہے. آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، بہت ہی سنجیدہ ہیں، بہت ہی ذمہ دار ہیں. بڑی تعداد میں خواتین تشریف لائی ہیں. خواتین کی شرکت، نوجوانوں کی شرکت ہزاروں کی تعداد میں. میں توجہ کا طالب ہوں. داخلی فتنہ ان لوگوں کا فتنہ تھا جو مسجد نبوی میں صف اول میں بیٹھا کرتے تھے، جن کے سر پر ٹوپی ہوا کرتی تھی، عمامہ ہوا کرتا تھا، داڑھی ہوا کرتی تھی، اور وہ ہاتھ میں مسواک بھی رکھتے تھے اور صحابہ کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے. ظاہری طور پر انہیں صحابی سمجھا جاتا تھا، مگر وہ صحابی نہیں تھے. اندر سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ منافق تھے. اندر سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے. ان کا ظاہر کچھ تھا، باطن کچھ تھا. مجھ سے قبل آپ نے حافظ غلام حسین سلمہ سے ان کے خطاب کے دوران میں آن لائن دیکھ رہا تھا جب میں سفر سے بیجاپور پہنچ رہا تھا. انہوں نے قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ تک پہنچائیں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے لباس میں، مسلمانوں کے لباس میں، داڑھی ٹوپی کے ساتھ، عمامے کے ساتھ باضابطہ طور پر منافقین حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں موجود تھے. منافقین کیسے کیسے فتنے بپا کرتے رہے آپ کو پتہ ہے. وقت دامنگیر ہے، میں آپ کی توجہ بڑی محبت کے ساتھ چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام کی شان میں ان کا کام گستاخی اور بے ادبی کرنا تھا. ان میں ایک بہت مشہور و معروف شخص گزرا، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی. اس کی معیت میں اس کے ساتھ ایک جماعت بھی تشکیل پائی تھی. وہ مسجد زرار میں بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی بے ادبی کرتے تھے. یہ تفصیلات حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کی ہمارے آپ کے سامنے ہیں. پھر اس کے بعد یہ فتنے سر اٹھاتے رہے اور 14 صدیوں سے جن فتنوں 1400 سالوں سے جن فتنوں سے ہم آپ دو چار ہیں، ان فتنوں کے پیچھے یاد رکھیے یہودی ہیں، ان فتنوں کے پیچھے نصارہ ہیں. ادھر 100-150 سالوں میں باضابطہ طور پر بہت سارے فرقے وجود میں آئے، بہت سارے فرقے بنے، بہت سارے مسلمانوں کے نام پر تفرقے ڈالے گئے. آپ حضرات اس سے بھی اچھی طرح واقف ہیں. الحمدللہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں. ہم اہل سنت و جماعت، کل بھی اہل سنت و جماعت تھے، آج بھی اہل سنت و جماعت ہیں، قیامت تک اہل سنت و جماعت رہیں گے. اس لیے کہ اس جماعت کا بانی و بانی کوئی مولانا، کوئی پیر، کوئی مولوی نہیں ہے. جس دن اللہ کے رسول نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان فرمایا، اسی دن اس مبارک جماعت کی بنیاد پڑی. ہم اپنی قسمت پہ رشک کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا، اس مبارک جماعت میں پیدا فرمایا جس مبارک جماعت میں اللہ تعالی نے غوث اعظم کو پیدا فرمایا، غریب نواز کو پیدا فرمایا، بندہ نواز کو پیدا فرمایا، ہاشم پیر کو پیدا فرمایا، حمزہ حسینی کو پیدا فرمایا، عبدالرزاق قادری کو پیدا فرمایا، خواجہ امین کو پیدا فرمایا. ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اولیاء اللہ کی مقدس جماعت میں پیدا فرمایا ہے. آپ کو ناز ہے کہ نہیں؟ بولیے ذرا، ہاتھ اٹھا کر کے بولیے دونوں.
सब मिलकर के मेरे साथ बोले अल्हम्दुलिल्लाह, जरा बुलंद आवाज से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह का शुक्र बजा लाते। अफसोस इस बात पर होता है कि मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, मुसलमानों में तफरका डाला जा रहा है, मुसलमानों में इंतशार इफ्तिराक पैदा किया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि हम दोनों फितनों का मुकाबला कर रहे हैं। खारजी फितने का भी मुकाबला, दाखिली फितने का भी मुकाबला। ये 14 सदियों से सिलसिला चल रहा है। आज भी 2025 में भी यहूदो नसारा के सपोर्ट पर बाज़ाब्ता तौर पर बनाम मुसलमानों को लड़ाने की साजिश की जा रही है। कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर, और ताज्जुब की बात यह होती है अकीदा तौहीद के नाम पर, अकीदा तौहीद के नाम पर मुसलमानों को लड़ाने की साजिश, अकीदा रिसालत के नाम पर मुसलमानों को लड़ाने की साजिश। अकीदा तौहीद की, अकीदा रिसालत की, अकीदा आखिरत की ऐसी तौज़ी तशरीह की जा रही है, उस तौज़ी तशरीह को सुन करके बड़े पैमाने पर मुस्लिम नौजवानों में गुमराही फैल रही है। हमारे दरमियान मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना अहमद नक्शबंदी तशरीफ ला रहे हैं। मोहतरमुल मकाम पीर तरीक़त शाह अफजलुद्दीन जुनैदी उर्फ सिराज बाबा सज्जादा नशीन बारगाहे शेख दकन तशरीफ ला रहे हैं। मैं हजरत वाला का, उलमाए किराम का खैर मकदम करता हूं। हमारे दरमियान उलमाए किराम भी तशरीफ लाए हैं, मैं उलमाए किराम का भी खैर मकदम करता हूं। अहलन सहलन मरहबा, आप तशरीफ लाए। हमारी दावत पर, हमारी गुजारिश पर आप हजरात इत्मीनान और सुकून से बैठिए। अकीदा तौहीद के नाम पर और अकीदा रिसालत के नाम पर, अकीदा आखिरत के नाम पर अलग अलग तौज़ी तशरीह तफसीर बयान की जा रही है। वो आयतें जो बुतों के रद में नाजिल हुई, उन आयतों को उठा करके अल्लाह के रसूल की जात पर चस्पान किए जा रहे हैं। वो आयतें जो बुतों की तरदीद में नाजिल हुई, उन आयतों को औलिया अल्लाह पर चस्पान किया जा रहा है। बहुत ही साजिश के तहत, प्लानिंग के साथ उम्मत मोहम्मदिया में तफरके पैदा किए जा रहे हैं। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा इस अमर के हवाले से कि आज आलमी सतह पर इस्लाम बड़े नाजुक मराइल से गुजर रहा है। आपको पता है अहले फलस्तीन, अहले गजा किन कर्बनाक हालात से गुजर रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते बिलाद इस्लामिया के हालात कैसे। आपको पता है हमारे मुल्क में भी हालात नागुफ्ता भी हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम और बंगाल तक, हम हर तरफ नफरत का माहौल देखते हैं। और हमारे मुल्क में भी आए दिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर, आपके नामूस पर हमला किया जा रहा है। ये तबका खारजी तबका है, यानी जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। वो लोग आए दिन कुछ ना कुछ शरारत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करते रहते हैं। आपको पता है कई कई किस्म के पाखंडी, खा वो शिमाल के हों, खा वो जुनूब के हों, बड़े पैमाने पर वो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुस्ताखी और बेअदबी करते रहे हैं। ये सिलसिला जारी है। हम आप पूरे मुल्क में सरापा एहतजाज हो जाते हैं। हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे, कोई बेअदबी करे, हमें बर्दाश्त नहीं है। हम तन मन धन से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर, आपके नामूस पर, आपकी इज्जत पर कुर्बान होने का जज्बा रखते हैं। मुसलमानों का बच्चा बच्चा, हर बेटा हर बेटी ये जज्बा रखते हैं कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम के नामूस पर कुर्बान हो जाएं। हमें गाली अगर कोई दे बर्दाश्त है, हमें बुरा भला कोई कहे बर्दाश्त है, मगर हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी बेअदबी करे हमें बर्दाश्त। बोलिए मेरे साथ, हमें बर्दाश्त। बुलंद आवाज से कहिए, हमें बर्दाश्त नहीं है। अफसोस
इस बात पर है कि वतन अजीज में जहां एक तरफ हम लोग इत्तेहाद बैनल मुस्लिमीन की कोशिश करते हैं, हम लोग इत्तेहाद बैन अहल सुन्नत वल जमाआ की कोशिश करते हैं, ये कहते हैं कि हमें मुत्तहिद रहना चाहिए, हमारा अल्लाह एक, हमारा रसूल एक, हमारा किबला एक, हमारी किताब एक, हमारा कुरान एक, हमारा कलमा एक। एक तरफ तो हम इत्तेहाद की बात करते हैं, दूसरी जानिब ये कोशिश की जाती है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बेअदबी करके इस अच्छे से माहौल को खराब किया जाए। सारे मिल करके हैं तो ये इत्तेहाद की फिजा को खराब किया जाए, तोड़ा जाए, बर्बाद किया जाए, इसकी फिक्र किया करते हैं। लोग इस सिलसिले में बहुत ही ज्यादा सरगर्म हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह फितना इस तरह बीजापुर में उठाया गया, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में खवातीन को, मर्दों को जमा किया जाता है, बुलाया जाता है तौहीद के नाम पर, बुलाया जाता है कुरान के नाम पर, बुलाया जाता है हदीस के नाम पर। आप अफसोस करेंगे, कुरान और हदीस के नाम पर बुलाकर, दीन के नाम पर बुलाकर यह कहा जाता है माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह का नूर नहीं है। आप मानते हैं इस बात को? सब मिलकर बोलिए। ये बोली उनकी है जो कुरान और हदीस के नाम पर बुला करके प्रोग्राम कर रहे हैं। हुजूर के इल्म गैब का इनकार, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात बादल ममात यानी हयातुल नबी का इनकार, मिलादुल नबी का मजाक, गौसे आजम की शान में गुस्ताखी, अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी, उलमाए अहले सुन्नत की शान में गुस्ताखी। इस तरह के हालात पैदा किए गए और ये जहन बनाया गया माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि ज्यादा हुजूर अलैहिस्सलाम की शान अगर बयान करोगे तो उसमें अकीदा तौहीद में फर्क आएगा, शिर्क करने का शायबा पैदा होगा, शिर्क का शक पैदा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, वो तुम्हारा अपना अकीदा होगा, तुम्हें तुम्हारा अकीदा मुबारक। हम अकीदा तौहीद के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि जिस कदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान और अजमत बयान की जाएगी, उसी कदर अकीदा तौहीद मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए कि हम लोग हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ना खुदा मानते हैं, ना खुदा की जात में शरीक ठहराते हैं, ना खुदा की सिफात में शरीक ठहराते हैं। हम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, आप हबीबुल्लाह हैं, नबीउल्लाह हैं। आपके पास जो कुछ है वो अल्लाह का अता किया हुआ है। जो कुछ आपके पास शान, अजमत है, फजाइल हैं, खसाइल हैं, शमाइल हैं, मुजज़ात हैं, ऐ मदीने के ताजदार, आपके पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है। जब ये बात हम कहते हैं तो बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। नौजवानों के जहनों को खराब क्यों किया जा रहा है? अल्लाह वहदहू है, ला शरीक है, लम यलिद है वलम यूलद है। उसकी शान अजमत बेमिसाल है। कोई भी इस अम्र को पसंद नहीं करता, लेकिन गैर जरूरी तौर पर मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश, तफरका डालने की साजिश, इस तरह की गुस्ताखियां, बेअदबियां की जा रही हैं। ये दाखिली फितना है। इस फितने से लड़ना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुश्किल हो जाता है कि आने वाला हमारे भाइयों की शक्ल में है, आने वाला दाढ़ी टोपी के साथ है, आने वाला अमामे के साथ है, आने वाला मिसवाक के साथ है, तस्बीह के साथ है, आने वाला दाढ़ी टोपी के साथ कुरान हदीस की बात करने वाला है। ये बहुत ही बड़े पैमाने पर चैलेंज हो जाता है। अफसोस इस बात पर है कि एक तरफ तो इत्तेहाद की बात की जाती है और दूसरी जानिब इत्तेहाद को खत्म करने के लिए साजिशें होती हैं। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास इसी मकसद के तई है कि बीजापुर में बिहम्दिही ताला गुलामान मुस्तफा हजारों की तादाद में रहते बसते हैं। बड़ी तादाद में हमारी खवातीन हैं। ये अल्लाह वालों का शहर है, औलिया का शहर है।
یہاں اس طرح کے فتنے نہیں چلیں گے. میں اپنا پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی حرکت دوبارہ کی گئی، اس طرح کی حرکت دوبارہ کی گئی تو اس کا بڑا خطرناک انجام ہوگا. ہم تقریر یا مناظرہ نہیں کریں گے، ہم ڈائریکٹ مباہلہ کریں گے. ہم ڈائریکٹ مباہلہ کریں گے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو. بہت سالوں پہلے، یعنی 25 سال پہلے بھی ہم نے مباہلے کا چیلنج کیا تھا. آج تک اسے کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم کیا ہو، کیسے ہو، کس طرح سے ہو. ہمارا دیش آزاد ہے، سیکولر کنٹری ہے. سب کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے اپنے مسلک کے مطابق جینے مرنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے. ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں چھیڑو مت. ہمیں اگر چھیڑو گے تو یہ تو ایک جلدی میں منائی گئی کانفرنس ہے. بالکل حضرت 4-5 دنوں کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ 8 دن کے اندر اندر اس کی تیاری ہوئی ہے. یہ بہت ہی جلدی میں منائی ہوئی کانفرنس ہے. اگر دوبارہ اس طرح کی حرکت ہوگی تو بہت بڑے پیمانے پہ ہر طرح سے کارروائی کی جائے گی. میں بہت محبت سے کہہ رہا ہوں، اپنائیت سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. امید ہے کہ آپ توجہ کریں گے اور اپنے اتحاد اہل سنت کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ.